दाखिले लेसे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। All our guests to Jammu Kashmir, a land of wisdom, curiosity for intellectuals, and a land of enlightenment and spiritual salvation for seekers. It is also a land of divine beauty and often termed as heaven on earth. But the real greatness of Jammu Kashmir is not confined to fascinating landscape, but it is also evident in the ageless culture and diversified cultural heritage. For eminent authors like Sri Ashwin Sanghi, Jammu Kashmir could be a metaphor and poetry. For many others, it could be the perfect example of immortal organic composite Indian culture and the Shakti Peeth, sacred place of eternal power. Whichever way you want to see, you will find that Jammu Kashmir is offering greatest treasure to the humanity. Being here in Jammu University, the brightest young minds fills me with joy and pride. Under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC, and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism, and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and three sub-themes. One, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making, and shape the discussions across the world. I believe India is truly playing its role of Vishwaguru after a gap of many centuries, and the world is looking at Honorable Prime Minister's leadership to realize the vision of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, to meet the future challenges more efficiently. In September 2022, when Honorable Prime Minister said, "This is not an era of war," the world listened, and the world leaders are seeing a new hope in India. There is a global consensus today that India will lead the world to effectively address the broader aspects of security challenges that also includes social, political, economic, and environmental factors in building and maintaining peace. Friends, G20 engagement groups such as Y20 has immense potential to contribute to peace building and peacekeeping, because youth is the best time to pursue a constructive agenda and usher in transformation. Youth is the most significant time to create civilized and cooperative world over with spirit of oneness. Today's young generation is eager, or I would say restless, to create a peaceful and prosperous present and future for the entire humanity. When I look at today's shrinking and interdependent world amidst pandemic, climate change, and ongoing conflict, I see the youth offering new hope and innovative solutions to tackle the challenges to peace and sharpen social consciousness. I see youth bringing about reconciliation and shaping a new world for the good of citizens across the globe, because individual as well as society's aspiration can be fulfilled only in conditions of peace. साथियों, युवा यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं को तथा विश्व को बदलने के लिए तत्पर है। युवा जीवन की वो अवस्था है जिसमें सृजनशीलता और ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है और जो समस्याओं को इनोवेटिव तरीके से
हल करने में या टैकल करने में सक्षम होता है। ये सच है कि आज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब हमारी आबादी की मीडियम एज 38 वर्ष होगी, यानी पूरे विश्व का सबसे संगठित युवा चेतना भारतवर्ष के पास होगी, जो वैश्विक तरक्की को बुनियादी आधार प्रदान कर सकेगी। मैं कहना चाहूंगा, जैसा पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, पिछले 8-9 वर्षों में देश के नौजवान बच्चे बच्चियों ने उस बदलाव की क्षमता को महसूस किया है, अपने सामर्थ्य को महसूस किया है। उनके अंदर एक नए प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और नई खोज के साहस ने जन्म लिया है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे देश में चला, ताकि हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलाव के मद्देनजर स्टार्टअप शुरू करने, यूनिकॉर्न स्थापित करने तथा रोजगार प्राप्त करने योग्य उन्हें बना सकें। आज जिस नॉलेज इकोनॉमी को हम आने वाला भविष्य मान रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का होने वाला है। आज पूरे भारत में 93,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 1,900 से ज्यादा यूनिकॉर्न, यही इनका इंजन, इनकी ड्राइविंग फोर्स हमारे युवा, हमारे यूथ हैं। आज ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक स्थिति चिंताजनक है और तेज गति से उभरने वाले बाजार भी लड़खड़ा रहे हैं, इन स्टार्टअप्स की सफलता और इंडियन इकोनॉमी का रिजिलियंस वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ संकेत करता है। आज जब भारत का युवा भविष्य की ओर देख रहा है, तो पिछले 8-9 वर्षों की प्रगति उन्हें और ऊंची महत्वाकांक्षाओं के लिए, नए रास्ते चुनने के लिए, आपसी सहयोग के नए लक्ष्य तय करने के लिए उत्साहित कर रही है। युवाओं के सपने कभी अपने लिए नहीं होते, वह सर्वे भवन सुखिना की भावना से समूचे विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। यही Y20 का संदेश होना चाहिए। इसी भावना का प्रसार विश्व के सभी युवाओं में करके हम सही मायने में शांतिपूर्ण ग्लोबल विलेज की स्थापना कर सकेंगे। इसलिए इस तरह का आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें धर्म नीति का अनुसरण करते हुए प्रबुद्ध जन नए आइडियाज को भी सामने रख सकेंगे। धर्म नीति पर आधारित सभा का एक बड़ा सटीक उदाहरण हमारे यहाँ मिलता है। महाराज जनक की सभा का नाम आपने सुना होगा। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहो विचार उचित का आजो। समस्याओं को सुलझाने के लिए होने वाले विचार विमर्श का आधार न्याय एवं मित्रता होनी चाहिए, जिसमें सबका कल्याण निहित है। मैं समझता हूं Y20 में हो रही चर्चाओं में भविष्य की योजनाओं की ऐसी रूपरेखा खींचनी चाहिए जिससे न्याय संगत मित्रता की भावना से सभी देशों के मध्य मौजूदा सहयोग और अधिक मजबूत हों, गहरे हों, नए क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय की जा सकें। शक्तियों, संसाधनों और ह्यूमन कैपिटल के द्वारा जन सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे ऊर्जा हो, खाद्य सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, पर्यावरण हो, इनमें युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। आप सबको याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी की उम्र महज 30 साल थी जब वो शिकागो पहुंचे थे। विश्व मानव की मूलभूत एकता को उन्होंने अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधियों के सामने जिस तरह रखा और समस्त सृष्टि के कल्याण की चेतना विश्व के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, आज विश्व की क्षमता, उसका सामर्थ्य जो पारस्परिक झगड़ों में व्यर्थ हो रहा है, उसे बचाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से आज युवाओं के कंधों पर है। विश्व की सामूहिक शक्ति को संरक्षित करके उसे मानवीय विकास एवं मानवता के उत्थान में लगाने की जिम्मेदारी आज के युवा पर है। विश्व के बहुविध समाज के युवा वर्ग को जब मैं देखता हूं, तो मुझे एक समान मूल्य और आकांक्षाएं, उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई पड़ती है। चाहे ग्लोबल साउथ हो या ग्लोबल नॉर्थ हो, युवा वर्ग गहरे भाईचारे एवं समान मूल्यों के बंधन में बंधे हुए हैं। अनेक समाज में नई आशाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न कर रहे हैं
और खासकर ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले देश सकारात्मक परिवर्तन के एक नए युग की दहलीज पर कदम रखे हैं। अब युवाओं के ऊपर एक बड़ा दायित्व आ गया है। इस यात्रा में नई विश्व व्यवस्था को मूर्त रूप देने का, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हो और वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से शांति, समृद्धि, मैत्री, सहयोग और प्रगति के क्षितिज पर विस्तार करे। कबीरदास ने कभी लिखा था, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। एक जीव का कल्याण दूसरे जीव के बगैर नहीं हो सकता, यानी इंसान का इंसान ही सहारा बन सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यही दर्शन विश्व में मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं और आज भी 8,000 से ज्यादा ट्रूप्स यूनाइटेड नेशंस के 10 मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें और निश्चित रूप से इस मंथन के बाद ये सुझाव सामने आएंगे जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, युवाओं को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से ताकतवर बनाएंगे। आज पूरा विश्व देख रहा है कि अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस, फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। आई फील ओवरजॉयड टू सी द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस लैंड ऑफ सूफीज एंड सेंट्स, एंड आई कैन से विदाउट हेजिटेशन दैट जम्मू कश्मीर इज इमर्जिंग a noticeable narrative on bringing civility to the land that was once scarred and wounded by terrorism. People, especially youth, are fearlessly pursuing their dreams. Now economic development and important stimulus to aspirational society and basic fundamental rights like education, healthcare, employment, and the pursuit of happiness are no longer hostage to violence. Youth power is the strength of Jammu Kashmir, and they have dedicated themselves to regenerate the society and to drive inclusive development. बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं वायु के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास
एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सदियों से मार्गदर्शन के लिए, सत्य की खोज के लिए, नीति आधारित व्यवस्था के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ अपेक्षा से देखता रहा है। और आज भी जब विश्व कोविड, क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, तब उसे मानवता के सबसे बड़े ऊर्जा क्षेत्र भारत से ही समाधान की अपेक्षा है। मैं एक बार आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख